मे बी पीपल आर अराउंड, तो रियलिस्टिक प्रिंसिपल काम करता है, ठीक है। अब नाउ एनीवन हु हैज गॉट अ हाई इट, who works only on pleasure principles, he becomes a criminal because he does not have control of his ego, that is realistic principle, and superego, moral values. Anyone who does not have moral values and just have it and ego, that is who works on pleasure principle and realistic principle. Realistic में लेकिन moral values include नहीं है. He may become politician, he may become media person because बहुत सारा झूठ सच बोलना पड़ता है उसको. कभी फॉल्स बोलेगा, कभी इवन जुडिशरी सर्विस, ये लॉयर्स, दे फॉर देयर क्लाइंट दे हैव टू एट टाइम्स टेल लाइज, दे हैव टू कॉम्प्रोमाइज देयर सुपर ईगो. सो एनीवन हु इज हैविंग दीज टू थिंग्स बट लैकिंग सुपर ईगो, ही मे गो इनटू दीज काइंड ऑफ फील्ड्स. एनीवन हु हैज दिस आल्सो एंड अ बैलेंस ऑफ दीज थ्री बिकम्स अ डिफेंस ऑफिसर, बिकॉज all these three factors are actually required in defense, and that is a personality which is required. If you see officers sitting at Siachen Glacier with men, or sitting in operational area where one is not even permitted to light a fire and it is minus 20 degree, the officer has that control. Pleasure तो मिल रहा है आग जलाने से, लेकिन realistic principle, my men are watching, I am the leader, if I do they will also do. Then moral, military values, I will not do anything against the moral principle, military values, whatever I have been told, I will bloody well do it. I will never do such things which are affecting the core values of an officer. So these three principles, anyone who has a balance is through SSB. अब this I am telling you from psychological perspective. अब ये अगर अंदर है तो यही चीज जीटीओ में भी बाहर आएगी, यही चीज आईओ में भी बाहर आएगी. बिकॉज जहां पर भी आपका माइंड लग रहा है, माइंड इज ऑल व्हाट, साइकोलॉजी. जहां दिमाग लगा हुआ है वहां साइकोलॉजी प्रेजेंट है. गेटिंग माय पॉइंट विद मी ऑन दिस. फिर एक हमारे 3 लेयर्स ऑफ कॉन्शियस लेवल होते हैं, ये सबको मालूम है, पढ़े भी होंगे, लेकिन उसको बहुत लेमन लैंग्वेज में फॉर अ सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग वी शुड नो. एक तो कॉन्शियस माइंड है, जो आप अभी मेरे को सुन रहे हो, इट इज योर कॉन्शियस माइंड. दूसरा है सबकॉन्शियस माइंड. सबकॉन्शियस माइंड है बचपन से लेकर आज तक, वॉट एवर यू रिमेंबर इन योर माइंड इज पार्ट ऑफ योर सबकॉन्शियस. एंड थर्ड इज द अनकॉन्शियस. इट इज दैट पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी और दैट पार्ट ऑफ योर माइंड विच इज नॉट नोन टू. आपने देखा होगा कई बच्चों का प्लेयर एकदम से 15-20 साल के बीच में एकदम से आके कुछ नई क्वालिटी उनकी डेवलप होती है, एकदम से पेंटिंग शुरू कर दिया, एकदम से गायक बन गया, एकदम बहुत बढ़िया. Suddenly he picked up a guitar, but he could do so well in playing that guitar. So what it was lying in the unconscious. Hanuman ji did not know he could go to Lanka, so he was made to remember that you can do this. So that was in his unconscious. So unconscious part में आपके strength भी है, weakness भी है. As a psychologist aim is to see your unconscious. कि आपके unconscious में क्या है, because आपकी personality more or less are guided by your unconscious. If you are not aware, आप एकदम से reactions करते हो अपनी लाइफ के अंदर किसी पर्टिकुलर चीज के ऊपर, instant actions हो जाते हैं आपसे which you are not किया, मैंने कैसे कर दिया, I don't know यार क्यों आ गया था गुस्सा. That is there lying in your unconscious, जिसके आंसर्स आपके पास भी नहीं है और आपके पेरेंट्स के पास भी नहीं है, वो आपका साइकोलॉजिस्ट दे पाएगा. क्यों, कहाँ, कैसे, ठीक है. So this is one thing, because अभी जो old students हैं, they see during the counseling we have discussed so many things, isn't it Mridal? So we have discussed so many things which the person himself was not knowing कि मेरे साथ कुछ ऐसी चीज है which is coming, but psychologist at SSB is going to catch all those things. Now there is nothing good or bad in psychology. When we say psychology is whatever you have stored in mind from right from your childhood till date, तो साइकोलॉजी में कुछ गलत स्टोरी, अच्छी स्टोरी या अच्छे सेंटेंस, देयर इज नथिंग लाइक दैट. एवरीथिंग इज राइट. वी आर चेकिंग योर बिहेवियर पैटर्न्स. आपकी बिहेवियर पैटर्न्स जो है, आर दे अफेक्टिंग योर पर्सनैलिटी एंड योर कंडक्ट. अगर इतने गहरे स्कार्स हैं, स्कार समझते हो, कोई ऐसा घाव है अंदर, या कोई ऐसा इंसिडेंट आपकी लाइफ में हुआ जो आपको खुद को नहीं मालूम, उसके कारण आपका बिहेवियर पैटर्न चेंज हो गया, वो चीज है ना, क्या वो आपके मिलिट्री लाइफ में आपको अफेक्ट कर सकता है?
that we are checking. So when we say psychology test, TAT, WAT, SRT, SD, they all are medium to enter your unconscious, to check your unconscious. ये story writing का test नहीं है. As I gave you example, Medal, about Prem's story, I had a counseling. I liked your story because you are very fresh. First time you have appeared for the exam. Way of writing and all that can be improved. But the kind of action oriented. Now, action oriented does not mean that somebody has to fight with somebody or do the action. Action oriented means whether it is a hard work, whether it is any kind of action to achieve the task. भले ही वो पढ़ाई हो, भले ही वो किसी की help हो. If you are showing your character, main character, to perform some activity, some task, so what kind of efforts he is putting, and whether it is only in talks or in action. Getting me now? Yes, sir. So that we had discussed. So TAT, WAT, SRT, these are just medium to know your unconscious. इनका टेस्ट नहीं है. इनकी कोई ना कोई तो हमें कुछ करना पड़ेगा ना, जिससे आपके माइंड के अंदर से मैं. लेकिन आपने लिख दी कर्नल क्रैक और ब्रिगेडियर स्मार्ट की स्टोरी, तो इट इज यूजलेस फॉर मी. ठीक है. When candidates apply his own imagination, the task of the assessor becomes easier. I am easily able to enter your mind and see if there is any aberrations, any issues with your personality or not. But when you write somebody else's story, I just came to know. Immediate मैंने old students को सबको counseling में बताया है कि whether they could apply their mind, इस story में उनका खुद का mind है या पहले की recorded लिख दिया. Means picture को देख के अपने imagination बनाई है या पहले का tabulation कर दिया. ये देखते ही मालूम पड़ जाता है. ओल्ड स्टूडेंट नाउ नो देमसेल्व्स. सबको मालूम है अभी कि कहाँ उनका खुद का दिमाग लगा है, कहाँ नहीं लगा है. I assure you, you all will be your own judge. After 2-3 weeks or 4 weeks, you will not require any kind of judgment on your stories or sentences. कि मैं मेरी stories सर जरा चेक करो ना सही है नहीं, जरूरत ही नहीं. एक महीने बाद you will be able to check your own stories, own sentences, whether it has come from your brain or not. As far as psychological tuning की बात है, वो मैं यहाँ से करके भेजूंगा, तो वो कोई issue है ही नहीं. So once I put you on that path, now you have to just move on that. So you will be your own judge, and right guidance is that only when one day you don't need any guide. ये ध्यान रखना. If you need a guide even after 2 months, 3 months, अगर उसके बाद भी गुरु की आवश्यकता है, तो it means आपको जो चीज बतानी चाहिए थी वो उस तरह से नहीं बताएगी. You have to be independent in your own personalities. खुद जज कर पाओगे अपनी स्टोरीज. Old ones they can do now. Quite few of you जो जा चुके हैं वो कर चुके हैं, लेकिन जो अभी यहाँ पर हैं they are still learning that. So good poor story or good poor sentence, it is only that whether you have applied your effective intelligence or not. अगर आपकी इंटेलिजेंस एबिलिटी हमें दिख रही है, मीन्स आपका इमेजिनेशन अगर है तो इंटेलिजेंस है. क्योंकि इंटेलिजेंस कम्स फ्रॉम, मतलब इमेजिनेशन कम्स फ्रॉम क्रिएटिविटी, एंड क्रिएटिविटी ओनली इज प्रेजेंट वेयर द इंटेलिजेंस फैक्टर इज अवेलेबल. जो अपना दिमाग यूज कर रहा है वही क्रिएटिविटी आएगी. जब आप माइंड यूज नहीं कर रहे, आप कोई भी अपनी पार्टीज भी प्लान करते हो अपने फ्रेंड्स के साथ में, किस डिटेल में आप उस पार्टी के लिए जा रहे हो. आपने अपने घर पे कोई गेट टुगेदर ऑर्गेनाइज किया, कितनी डिटेल में आप उसमें जा सकते हो. डोंट यू फील दैट इज पार्ट ऑफ इमेजिनेशन? एवरी एक्शन बिफोर एग्जीक्यूटिंग यू इमेजिन फॉर दैट. यस और नो? आपको यहाँ से अपने घर से कॉलेज जाना है या कॉलेज से फ्रेंड के घर जाना है, उसकी भी चीजें आप पहले इमेजिनेशन में लेके आते हो. उसको इमेजिन करते हो, उसका खाका बनाते हो, उसका रूट बनाते हो. फिर मैं वहां जाके ये कर लूंगा, फिर ये कर लूंगा, वहां से वहां जाऊंगा, वहां से घड़ी ठीक करानी है, घड़ी ठीक करा के फिर मैं वहां से अपने शूज ले लूंगा और फिर घर पहुंच जाऊंगा. डोंट यू फील यू डू एवरीथिंग इन इमेजिनेशन फर्स्ट? तो हम यहाँ पे क्या करा रहे हैं? वी आर जस्ट चेकिंग हाउ मच डिटेल यू कैन ब्रिंग इन योर इमेजिनेशन. इसलिए हम आपको कोई ना कोई स्टिमुलस देते हैं. अब माइंड के अंदर से निकालने के लिए कुछ तो मैं उसमें डालूंगा ना. जब तक उसमें मैं कुछ दाना नहीं डालूंगा तब तक आपका माइंड कैसे उसके ऊपर रिएक्ट करेगा. तो इट इज जस्ट दैट कि आई एम गिविंग यू सम स्टिमुलस, वी कॉल इट स्टिमुलस इन अ फॉर्म ऑफ अ पिक्चर और WAT. नाउ हाउ योर माइंड इज रिस्पॉन्डिंग टू दैट. मेरे को बस वो जिसकी जैसी पर्सनैलिटी, जिसकी जैसी रिकॉर्डिंग. कोई क्राइम पेट्रोल देख के आया तो वही निकलेगा, कोई सनसनी देख के आया तो वही निकलेगा. किसी ने वेब सीरीज देखी है, क्योंकि एक के बाद रुका नहीं जाता, 7 तो देखनी पड़ती है, 7 घंटे तो लगते ही लगते हैं, है ना. तो वो फिर वो वैसे का वैसा.
So it is all about. Then some people say cracking SSB. Gentlemen, there is nothing called cracking of SSB. Cracking itself sounds to be faking. Don't you feel so? Crack itself is a word which tells a person that you fake your personality. भैया crack कर दो SSB. जो IIT के लिए crack use होता था पहले, अभी SSB के लिए भी crack शुरू है. There is nothing called. When you feel that you have to crack, it means you are trying to fake your personality. And fakers are not required. Fakers will be caught. And faking क्या होता है? Faking होता है खुद का दिमाग नहीं लगाना, किसी और का दिमाग लेके आना. और माइंड की इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम, एज आई टोल्ड यू, हमारे एजुकेशन सिस्टम इज सो ब्यूटीफुल दैट इट ओनली टेल्स यू हाउ टू क्रैम वेल, बट इट डज नॉट टेल यू हाउ टू अप्लाई योर माइंड. आपको पढ़ाया पहले जाता है, लेकिन क्यों पढ़ रहे हो उसका आपको आखिरी तक नहीं मालूम पड़ता. जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, इंटीग्रल कैलकुलस मैथ्स मैंने क्यों पढ़ी थी 12th में, आज तक मेरे को नहीं मालूम. आई स्टिल कीप थिंकिंग, बट डोंट यू फील मेरे को पढ़ाने से पहले टीचर को बताना चाहिए था कि बेटा आप इंटीग्रल कैलकुलस इसलिए पढ़ रहे हो क्योंकि ये ऐसे 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 काम आती है. यस और नो? प्रोबेबिलिटी पढ़ी मैंने. प्रोबेबिलिटी ठीक है पढ़ाई, वो 4 बॉल उठाई उसमें से 2 की प्रोबेबिलिटी, ये प्रोबेबिलिटी सब समझ आ गया, तुम्हारे एनडीए के अंदर भी है. लेकिन उसको मेरे को पढ़ाया क्यों गया था? प्रोबेबिलिटी ठीक है, लेकिन कहाँ का काम आ सकती है, उसके ऑप्शंस मेरे को तब नहीं समझाए गए. तो इट इज समथिंग लाइक दैट. आपकी चाइल्डहुड में जब आपने स्टोरी राइटिंग सीखी थी, नो टीचर टोल्ड यू कि भैया आज ऐसा करेंगे, सब बच्चे इमेजिनेशन अपनी अपनी से एक अच्छी स्टोरी बना के दिखाएंगे. आई एम गिविंग यू 10 मिनट्स, ये 4 बच्चे अच्छी स्टोरी सुनाएंगे, अपने दिमाग से सुनाएंगे, किसी से कॉपी नहीं करते. अगर हमें तब सोचवा दिया होता तो यहाँ प्रॉब्लम आती. तो पॉइंट इज जस्ट दैट. सो these are the facts I am telling you. So aim of the assessor to scan your original personality. Psychological tuning is possible, but whenever you try to coach yourself, you are actually harming yourself. Coaching का मतलब क्या होता है? What's the difference between coach and a guide? Anyone? So in coaching, one is like giving his ideas to somebody else, and in guidance you tell them how to apply your own Exactly. mind. So coaching is something, a coach tells you do this, do that. He is giving his own mind, templating his own mind on you, what he has learned, to do the same thing in his fashion. But the guide will tell you apply your own mind. So here it is a guidance firstly. So all of you, as I told you, I will only be telling one story in the entire capsule. Rest, everything is your mind, what it comes in. Few mock exercises and other some breathing exercises I will be telling you for your better imagination and good sharpness to bring sharpness in the mind. Okay. So now stage 1 testing. So these are the 2 tests I already told you yesterday, so I don't need to give more details on this. OIR and PPDT, and this is the psychological test series.